Today's class is on the topic heat transfer. Right? Can anyone tell me what is heat? कोई heat क्या होता है बता सकता है मुझे? Please raise hands again to answer. Please raise your hands. What is the meaning of heat? Yes, Madhya. भैया गरम. Garam. Heat means garam. Okay. Heat means garam या गर्मी. Heat means गर्मी. Okay. And what does transfer mean? किसी को पता है transfer का मतलब? भैया एक चीज दूसरी जगह. I really cannot hear you. आपके घर में बहुत आवाज आ रही है. भैया हाँ. है ना, यानी ट्रांसफर यानी है ना एक चीज दूसरी जगह भेजना. वेरी गुड. एक चीज दूसरी जगह. ओके. ट्रांसफर मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके. सो हीट मतलब कितनी गर्मी है या क्या गर्मी है, एंड ट्रांसफर मतलब मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो हीट ट्रांसफर हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. प्लीज राइट द हेडिंग इन योर बुक. और नीचे दो वर्ड्स के मीनिंग लिखे हैं मैंने यहाँ पर. ओके. प्लीज राइट दैट इन योर बुक. ओके. Please write that in your book. Does anyone want to read this? Yes. Yes. Okay. Many students have raised their hands, so I'll give them a chance. Shifa, can you read the first part? Shifa? Yes, Bhaiya. Yes, please read it. What will happen if you keep a spoon in a pot of boiling water? Okay. What will happen if you keep a spoon in a pot? Pot मतलब कुछ घड़ा है ना, या मटका. of boiling water. Boiling water मतलब जो पानी उबल रहा है. अगर आप उबलते हुए पानी में एक चम्मच रखोगे तो क्या होगा? Palak, you want to read the questions? What will you be able to hold it initially? At first. Will you be able to hold it after some time? Okay. So do you want to answer them? No. Will you be able to hold it? Question. हाँ, answer the first one. Will you be able to hold it initially? जब आपने चम्मच ये बॉइलिंग वाटर में रखी तो क्या आप इनिशियली पकड़ पाओगे उसको? No. इनिशियली रखते समय क्या आप पकड़ पाओगे उसको? हेलो. No, you don't. Yes, भैया. No, Yeah, भैया. I think you would be able to hold it ना. जब हम लोग जस्ट रख रहे हैं, जब हम लोग चम्मच जस्ट रख रहे हैं तो हम लोग पकड़ पाएंगे. बट आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? चम्मच क्या हो जाएगा? चम्मच को गर्म हो जाएगी. ओके. द spoon will become hot. So no, we will not be able to hold later. Okay. After some hold it after some time. क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? क्योंकि गर्म हो जाएगा. After some time as it will get hot. है ना, गर्म हो जाएगा तो हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे. बट जब हम रख रहे इनिशियली तब हम पकड़ पाएंगे. राइट? Will we be able to hold it? Yes. We will be able to hold it. Okay. Right. So heat transfer. So what is heat transfer? Does any Diksha, you can read this time. Last time आपने hand raise किया था, but you didn't get a chance. Yes. Heat transfer. Transfer of heat means the flow of heat from one place to another. We know that transfer of heat happens as when we keep a cold object near the cold object later becomes hot. Okay. Very good. So transfer of heat happens. Flow of heat from one place. Transfer of heat means flow of heat from one place to another. है ना. गर्मी जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो हीट ट्रांसफर होता है. क्यों पता है हमें कि हीट ट्रांसफर होती है? ओके. क्योंकि अगर हम एक ठंडी चम्मच जैसे कोल्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ठंडी चीज अगर किसी गर्म चीज के बाजू में या गर्म चीज के अंदर रखे तो वो ठंडी चीज भी गर्म हो जाती है. तो क्या हुआ? जो गर्मी थी फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट इट वेंट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट. है ना, जो गर्मी थी वो गर्म जो भी चीज थी वो
उससे ठंडी चीज पे गई, तो उसको हम बोलते हैं हीट ट्रांसफर. दैट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर. सो प्लीज राइट दिस इन योर बुक. व्हाट इज हीट ट्रांसफर? या डज एनीवन वांट टू रीड? कोई पढ़ना चाहेगा? यस पलक, यू कैन रीड. Palak, you want to read it? Okay. All right, then Mohina, you can read if you want. How does heat transfer happen? Okay. Heat transfer can happen through three modes. Through three modes. Three modes: con- conduction, Convection. convection, radiation. वेरी गुड. ओके. ही जो गर्मी है वो एक जगह से दूसरी जगह या एक चीज से दूसरी चीज में किस तरह से जाती है? ओके, कैसे जाती है गर्मी एक जगह से दूसरी जगह, कैसे जाती है? देयर आर थ्री वेज. थ्री मींस थ्री मोड्स. तीन तरह है जिससे ये होता है. पहला है कंडक्शन. क्या होता है पढ़ेंगे. सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन. तीनों हम लोग पढ़ेंगे. ओके. हीट ट्रांसफर हैपेंस थ्रू थ्री मोड्स: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. प्लीज राइट इट इन योर बुक. Please write it in your. So the first way is conduction. सबसे पहला है conduction. Does anyone want to read? Yes. Yes. We'll give the chance to Madhya this time. I think she hasn't read. So. Conduction: when heat from hot part of one object move to the cold part, it is called conduction. Okay. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, you can see over here, right? In this fire, मतलब ये रॉड रखा है किसी ने आग में, है ना? मेटल रॉड है. तो या पहले यहाँ पर गर्म हुआ और फिर ऊपर गर्मी गई और उसका हाथ जल गया. राइट. राइट. So this is called conduction. When heat from hot part, जब गर्म एक पार्ट गर्म करो और वहां से गर्मी कहाँ जाएगी? ठंडे पार्ट पर. जब वहां से ये गर्म पार्ट से गर्मी जब जाती है ठंडे पार्ट पर, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन. एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाना, उसको बोलते हैं कंडक्शन. हीट जब गर्मी एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर तक जाती है, उसको बोलते हैं कंडक्शन. प्लीज राइट इट इन योर बुक एंड ड्रॉ इट. सो we are going to see this experiment on conduction. experiment मतलब उससे हमें पता चलता है या दिखता है कि कोई चीज होती है या नहीं होती. ओके, हम टेस्ट कर सकते हैं. So we will see this experiment on conduction. Please observe and watch the video. If you keep a metal spoon in a pot of hot curry, soon the entire spoon gets too hot to touch. But how does the end of the spoon outside the hot curry become so hot? Let us conduct an experiment to study how this transfer of heat occurs. For this, we need this metal spoon, a number of pins, spirit lamp, and a matchbox. Take the spoon, melt the backs of the candle, and use it to stick a few pins on the metal spoon at regular intervals like this. Now light the spirit lamp. Place the flame at the free end of the spoon. Okay, so we just taken metal spoon, उस पे से wax या मीड बोलते हैं wax को, है ना? उससे उसने चार पिन्स लगाई है. एंड ही इज गोइंग टू सी कंडक्शन कैसे होता है, क्योंकि वो स्पून को सिर्फ यहाँ पर गर्मी दे रहा है ना. बट देखते क्या होता है. Observe. We see that the pins start to drop from the wire one by one as the wax that stuck them to the metal spoon melts. The first pin to fall is the one closest to the flame, and the last one to fall is the one at the far end of the spoon. तो आप देख सकते हो गर्मी कैसे जा रही है. गर्मी इधर से जहां पर गर्म कर रहा है स्पून को, उधर से राइट जा रही है. इसलिए पहले लेफ्ट वाली पिन पड़ी, फिर अगली वाली पड़ी, फिर अगली वाली पड़ी. क्यों गिरी? क्योंकि वो वैक्स जो था, जो वहां पर वैक्स था या मीड था, वो मेल्ट हो गया, है ना? वो मेल्ट हो गया तो पिन फेल. This shows that the heat from the flame is traveling along the wire from one end to the other. जैसे जैसे गर्मी राइट साइड जा रही है, वैसे वैसे वैक्स मेल्ट होके गिर गया. Not instantaneous. This method of transferring heat is called conduction. Conduction is the transfer of heat without any movement of particles in the object. It occurs only in solids. Heat is transferred from regions of high temperature to low temperature. Do you know all metals are good conductors of heat? So cooking vessels are made of metals to transfer heat from the flame to the food, so they will cook faster.
ओके, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट टू शो कंडक्शन की कैसे गर्मी जो है या हीट जो है वो एक जगह से पूरे स्पून में आगे आगे बढ़ती है, और वो भी राइट से लेफ्ट से राइट, मतलब जो गर्म जगह है उससे ठंडी जगह जाती है. ओके, धीरे धीरे जाती है, इट टेक्स टाइम, एंड या दैट वाज कंडक्शन ऑफ हीट का एक्सपेरिमेंट. विल गो एंड सी द नेक्स्ट टाइप, कन्वेक्शन. ओके, अगला वाला क्या है? कन्वेक्शन. डज एनीवन वांट टू रीड दिस? Cool, we'll give a chance to I'll give a chance to Palak this time. Yeah, Palak. Convection. Transfer of heat from hot parts of fluid, liquid and gases to cold part by currents is called convection. Very good. Okay, जब हीट कोई हॉट पार्ट मतलब जो गर्म जगह है, ओके, टू कोल्ड पार्ट जाती है, ओके, इन फ्लूइड्स. फ्लूइड मतलब क्या? लिक्विड एंड गैस, है ना, जो भी हवा है और जो भी पानी जैसे चीजें है, पानी जैसी चीजें और हवा जैसी चीजें, ओके, उनमें जब ट्रांसफर होता है, क्या होता है? जो यहाँ पर गर्म हो रहा है तो गर्म पानी ऊपर जाएगा और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आएगा, और ऐसे गर्म होता है. ओके, सो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं करंट. मतलब ये जो गर्म पानी का करंट है और ये ठंडे पानी का करंट है. गर्म पानी का करंट ऊपर जा रहा है, ठंडे पानी का करंट नीचे आ रहा है. ओके, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन. दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. प्लीज राइट इट इन योर बुक एंड ड्रॉ इट. प्लीज राइट इट इन योर बुक. सो लेट अस वॉच दिस एक्सपेरिमेंट. कन्वेक्शन का एक्सपेरिमेंट देखते हैं. प्लीज लिसन केयरफुली टू व्हाट शी इज सेइंग. प्लीज एकदम ध्यान से सुनो वो क्या बोलती है इसमें. ओके, इट्स अ लिटिल लॉन्ग वीडियो. Hello everyone. Students, we know that heat is a form of energy. We get many examples in our day-to-day life. For example, the water in the cooker when heated up turns into steam. भैया आवाज नहीं Is kept on the और Hello everyone. Students, we know that heat is a form of energy. We get many examples in our day-to-day life. For example, the water in the cooker when heated up turns into steam and it can lift the weight which is kept on the भैया वीडियो तो हिल रहा दिख रहा है नहीं. transfers from the higher temperature to lower temperature. There are you can't see the video. What? Abhi three types of transmission of heat: conduction, convection, and radiation. Today, we are going to see the convection, that is the transmission of heat in liquids. For that, we require two glasses, some color, a CD, and cold and hot water. Now, let me pour cold water in one glass एक ग्लास में ठंडा पानी, and hot water in the second glass. एक ग्लास में गर्म पानी. Now let us add some color in the hot water. कलर गर्म पानी में, है ना. Now let us take a CD and keep it on the cold water. Hold this properly and flip it on the hot water. हाँ, देर आप देख सकते हो What you can see, गर्मी देखो कैसे जा रही है. the hot color water is rising upwards. This happens because the hot water is less dense than the cold water. This is known as the convection mode of heat transfer. ओके, हॉट वाटर We ऊपर just गया saw इसलिए that कलर the ऊपर convection चला गया. current was moving upwards. Do they always really go upwards, or can they move downwards also? Let us check that by keeping गर्मी का कंडक्शन करंट, गर्मी का जो करंट था, ओके, हॉट वाटर का जो करंट था वो ऊपर गया. तो शी इज आस्किंग कैन द करंट मूव डाउन, क्या वो नीचे भी जा सकता है? लेट अस सी. the hot water glass on the cold water. So
will be taking cold water in one glass and hot water in the other glass. Let us take some color and add it in the hot water. हॉट वाटर में अगेन कलर डाला है, देखेंगे कि गर्म पानी या जो हॉट वाटर का करंट है या वो कोल्ड में जाता है या नहीं जाता है. Let us take a CD and keep it on the hot water. Now hold it properly and flip it on the cold water. अभी ऊपर हॉट रखा है, नीचे कोल्ड, क्या ऊपर से नीचे जाता है या नहीं ये देखना है. एंड यू कैन सी that the convection current always move upwards and not downwards. Here you can see clearly the color water and the cold water are separate. This experiment shows us that the convection current always moves upwards. Students, with this experiment, we can see the convection mode of heat transfer. We also understood that the convection current always moves upwards. Hope all of you have enjoyed the video. Thank you. Okay, really good video. So this is the use of studying convection. हम लोग क्यों पढ़ते हैं convection के बारे में या conduction के बारे में, सारे heat transfer के बारे में. So can anyone tell me what is happening? यहाँ पर क्या हो रहा है? Okay, what is this? ये क्या है? Can anyone tell? अंगार भैया है ना. No. I need you to raise your hands. I need you all to raise your hands. It's very easy, right? Madhya and Shifa, this was all your fault. So I want you guys to raise your hands and answer again. What is this? Yes, Madhya, please tell me. भैया कुर्सी पे है ना आग लगी हुई है और है ना वहाँ एक है ना आदमी है. ओके, कुर्सी पे आग लगी है तो आग का धुआं या आग की गर्मी कहाँ जा रही है? ऊपर जाती है ना? देखा है कि नहीं? आग की जो गर्मी ऊपर जाती है. तो इसकी वजह से ये आदमी क्या है? फायर फाइटर है. कौन है? फायरमैन. तो वो नीचे झुका. हाँ, वो नीचे क्यों झुका है? क्योंकि फायर ऊपर जाती ना तो. वेरी गुड. गर्मी का जो करंट है, ये लाल कलर का गर्मी का कन्वेक्शन करंट, वो ऊपर जाता है ना. जो गर्मी का हवा का करंट है वो ऊपर जाता है. गर्म हवा ऊपर जा रही है तो नीचे ठंडे में वो झुक के जाएगा और बुझा देगा आग. ओके, ये सब रीजंस हम लोग पढ़ते हैं. दिस इज व्हाई वी स्टडी ऑल दीज थिंग्स, ताकि हमें मदद हो सके, सोसाइटी को मदद हो सके. ऑलराइट, लेट अस सी अनदर एक्सपेरिमेंट ऑफ कन्वेक्शन. कन्वेक्शन का अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं. प्लीज ध्यान से देखना क्या होता है. ऑलराइट, And we're back learning about heat transfer. And I see that you guys have a tray of water and a bottle and a penny. And what are you trying to do with that bottle, Gabby? What are you trying to see? We're trying to see the penny. You want to see if the penny moves. Okay, so let's set it up, Melody. Go ahead and tip that bottle over. okay. Put it upright. And Gabby, fish out that penny. And put it right on the lid of the bottle. Okay, now Melody, are your hands pretty warm? Okay, I want you to. तो bottle और coin were kept in the cold water. Bottle and coin were kept in cold water. तो ये part cold हो गया है ना? Okay, अब वो इसकी गर्मी की वजह से देखना, अंदर जो इस कोक के बॉटल में अंदर जो हवा है ना, वो गर्म हो जाएगी और ये कॉइन हिलेगा. So let's see. Grip the outside of the bottle and see if the penny moves without touching it. So grip it hard. Keep watching. देखो. Keep watching, Melody. There it moves. Okay, so I'm gonna come over here to. So you guys could see that the bottle, air inside the bottle was cool. Okay, उसके
उसके हाथ गर्म थे, फिर उसने नीचे पकड़ा तो अंदर की हवा गर्म हो गई, तो गर्म हवा ऊपर गई, है ना, गर्म हवा ऊपर गई और उसकी वजह से कॉइन हिल गया, बिकॉज ऑफ दैट द कॉइन मूव्ड. दैट इज अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ कन्वेक्शन. पहले हमने लिक्विड में देखा, फर्स्ट वी सॉ इन लिक्विड. अब हमने गैस में देखा, अब हमने हवा में देखा, है ना, गैसेस में देखा कि कन्वेक्शन कैसे होता है. जो गर्म हवा है वो ऊपर गई, उसमें भी जो गर्म लिक्विड था वो ऊपर गया. ऑलराइट, सो दिस इज कन्वेक्शन. going to move ahead. Last part, this is the last one, radiation. Can anyone read it? कोई पढ़ना चाहेगा? Please raise hands again. I don't want to repeat myself. Yes, Diksha, please read it. Radiation. Transfer of heat from a hot object to its surroundings without a medium is called radiation. Very good. Okay. कोई चीज की जरूरत नहीं है, बस एक गर्म चीज है और उसकी जो गर्मी है वो उसके आजू बाजू की चीजों पे जाती है, उसको बोलते हैं रेडिएशन. जैसे यहाँ आग है, आग की गर्मी हम लोग लेते हैं, ओके, उसको बोलते हैं रेडिएशन. या फिर ये सन है, ये क्या है, सन है. सन की गर्मी हमें कैसे पहुंचती है? स्पेस में तो कुछ नहीं होता ना, स्पेस खाली, एकदम खाली होता है, फिर भी हमें उसकी गर्मी पहुंच जाती है. किससे पहुंचती है सन की गर्मी? हमें क्यों पहुंचती है? हाउ डू वी गेट इट? किस वजह से पहुंचती है हमें? एनीवन? It reaches to us using those sun rays, या फिर जो किरणें बोलते हैं, सूरज की किरणें, ओके, वो ही रेडिएशन होता है. दैट इज ओनली रेडिएशन. उसके लिए कुछ चीज की जरूरत नहीं होती, कुछ और चीज की जरूरत नहीं होती. प्लीज राइट दिस इन योर बुक. दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट, सबसे इजी एक्सपेरिमेंट है ये. आप घर पे भी कर सकते हो, बस बर्फ लेना और धूप में रखना है, ओके. दिस इज एक्सपेरिमेंट टू शो रेडिएशन, कैसे सूरज की जो किरणें हैं. 1 सेकेंड. Is not working. One second, maybe it will work here. Let's try to do this. Yeah. You can see सूरज की किरणों की वजह से जो बर्फ है वो मेल्ट हो रहा है ना. तो सूरज की गर्मी बर्फ में आ रही है, इसलिए वो मेल्ट होके पानी बन रहा है. इट इज मेल्टिंग एंड बिकमिंग वाटर. This was the experiment of radiation. कैसे सूरज की किरणों की वजह से या सन में से जो भी हीट है वो बर्फ में आ रही है और बर्फ मेल्ट हो रहा है. एंड दिस इज वन एक्सपेरिमेंट आई वांट यू टू ट्राई एट होम. कैन एनीवन रीड दिस? कोई पढ़ना चाहेगा इसको? घर पे करना है आपको, ट्राई एट होम. यस पल्लक, रीड इट. लास्ट टाइम दीक्षा ने पढ़ा था, राइट? पिछली बार किसने करे? Try at home. Take hot water in a glass. Put inside it a pencil, scale, and a spoon. Which one heats faster? Why? Okay. क्या बोल? What does it mean? क्या पूछा है? It means that एक ग्लास में गर्म पानी डालो और उसमें पेंसिल, स्केल और स्पून रखो, और पूछा है कि इन तीनों में से कौन सा सबसे जल्दी हीट होगा और क्यों. ओके, ये आपको घर पे ट्राई करना है एंड यू हैव टू राइट द आंसर फॉर दिस. ओके, व्हिच हीट्स फास्टर एंड व्हाई, कौन सा ज्यादा जल्दी गर्म होगा और क्यों. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज का क्लास यहीं खत्म होता है, राइट? सो